Hello, warriors. Welcome to Super Kalam. Today, we are starting with a very important session. Now, this is going to be the first session of Indian polity, where we are going to delve deeper into how to deal with Indian polity. I know you all have the resources. You all have M. Lakshmikant book. You all have the necessary NCRTs. You all must be making mind maps or must be making your own notes, right? You all must be having the syllabus of UPSC. We have discussed this a lot of time. You must be having the PYQs at least of last 6 to 7 years for both prelims and mains. But the point is, when you have all these resources, how to utilize them for Indian polity? When we talk about Indian polity, we need to understand there are three things which are involved, and I will be sharing my own notes with you so that you can delve deeper into the intricacies of Indian polity. है बहुत सिंपल, हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो आज मैं जो आपने गुत्थी बनाई है इंडियन पॉलिटी की, उसको सुलझाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी एंड यू कैन देन स्टार्ट योर जर्नी विद इंडियन पॉलिटी विद मच मोर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस by the end of 1 month. If you follow the instructions that I'm going to share with you in this class, by the end of 1 month you'll find yourself much more articulative when it comes to constitution, governance, polity, etc. If you have any doubts, any further questions, comment sections are always open. You can also reach out to us via mail, which is also given in the description box, and you can get your doubts solved. Here we are going to delve in both perspective, from prelims perspective and mains perspective. तो holistic एक overview मैं आपको देने वाली हूँ Indian polity का सबसे पहले. When we talk about Indian polity, there are three things: sources, practice, and mind maps. Mind maps are of utmost importance. You can call them your own notes or you can call them flowcharts, etc. जो भी नाम आपको सही लगे, या फिर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो वो भी ठीक है, बट माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली इट इज द मैपिंग ऑफ व्हाट यू हैव retained or what you want to recall, because at the time of exam you will be already having a lot of notes and a lot of registers with you to revise from. And if you have one pager, two pager mind maps with you, then it becomes very easy to navigate through the complex subject of Indian polity, which is linked holistically with current affairs. तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोर्सेस से. इंडियन पॉलिटी की जब बात आती है तो ये कुछ सोर्सेस स्टार्ट करने के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट रहते हैं. सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड द मस्ट टू हैव सोर्स वुड बी दी एनसीईआरटीज. And many students, they delve deeper into class 6 to class 12th NCERT, which is not good. मुझे पता है क्लास 7th 9th की NCERT इससे स्टार्ट हो जाता है हमारा पॉल साइंस की जर्नी. बट हमें यहाँ पर बेसिकली अगर प्रिलिम्स के पेपर को एनालाइज करें, इफ यू गो बैक एंड एनालाइज द लास्ट 10 years prelims question paper, you will find basic terms like justice, like preamble, लाइक द 10th शेड्यूल, आया राम गया राम वाला जो टॉपिक है डिफेक्शन का, और बिल ऑफ राइट्स, यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स है, और द आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, और द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, हमारे प्रिलिम्स के क्वेश्चन पेपर में. और व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग लेट्स से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली एवरी ईयर आर्टिकल 21 इज रिपीटेड, क्वेश्चन इसके ऊपर हर साल आता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स, वी सी दैट डायरेक्ट यूसेज ऑफ एनसीईआरटी इज डन बाय यूपीएससी. And there are two basic NCRTs that you have to keep with you. You have to revise from them: Indian Constitution at Work and Political Theory. ये दो डायरेक्ट यूपीएससी के सोर्सेज हैं. अब मैं आपको यूपीएससी के डायरेक्ट सोर्सेज बता रही हूँ. दैट मीन्स यू हैव टू डिस्कार्ड द irrelevant material that you are hoarding or accumulating from the market. डायरेक्ट सोर्सेज पे टिके रहोगे, उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व द पॉलिटी पोर्शन इन प्रिलिम्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस. आपका कॉन्फिडेंस 99% यहीं से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आप देखोगे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत. अब इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत में आप यहाँ देखो कि वी हैव एम लक्ष्मीकांत बुक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पॉलिटी का, दी एम लक्ष्मीकांत बुक.
एम लक्ष्मीकांत बुक का लेटेस्ट एडिशन आपको यहाँ पर रखना है। लेटेस्ट एडिशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटेस्ट एडिशन? दैट मीन्स अभी करंटली द लेटेस्ट एडिशन इज सेवेंथ एडिशन। लेटेस्ट एडिशन इज ऑलवेज अपडेटेड। तो जो भी डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट पॉलिसीज विच आर बीइंग फ्रेम्ड और पास्ड, तो हमें अपडेटेड बुक ही रखनी है अपने पास। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, हिस्ट्री में एडिशन इतना मैटर नहीं करता। व्हाई? बिकॉज इट इज अबाउट द पास्ट। But when it comes to books like polity or books on international relation, always remember you have to keep yourself updated. सो मैनी स्टूडेंट हैव दिस डाउट, मैम फिफ्थ एडिशन है, सिक्स्थ एडिशन है, क्या उससे हो जाएगा? आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाना है। आपको समझना है पॉलिटी हमारे डे टू डे लाइफ में चल रहा है, राइट? एंड डे टू डे लाइफ मीन्स इन पार्लियामेंट देर आर डिफरेंट स्पीचेस, डिफरेंट डिबेट्स, डिफरेंट बिल्स विच आर पास्ड। सो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू करंट, एंड करंट के लिए पास्ट के एडिशन रेलिवेंट नहीं रहेंगे, ठीक है? एंड फॉर रेफरेंस पर्पस हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट अपने पास रखना ही रखना है। ये आपको प्री में नहीं, मेंस में काफी हेल्प करेगा। एंड इफ यू हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉल साइंस एज योर ऑप्शनल, गवर्नेंस का जो टॉपिक हो जाता है आपका जीएस पेपर 2 में, वहां आपको बेयर एक्ट्स काफी हेल्प करते हैं टू सब्सटैंशिएट योर आंसर विद फैक्ट्स, विद स्टैट्स, विद आर्टिकल्स, विद रेलिवेंट डेटा। तो ये हम ऑब्वियसली व्हेन वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद पॉलिटी, जब पॉलिटी में आप डीपर जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज, वहां बेयर एक्ट्स आपको काफी हेल्प करेंगे टू रेफर टू। फंडामेंटल राइट्स में बेयर एक्ट्स काफी हेल्प करेंगे। नाउ वन स्टेप इज क्लियर, वी नो द सोर्सेज। नाउ द सेकेंड स्टेप विल कम इन टू फ्रूशन। नाउ ये है प्रैक्टिस। यहाँ पर ना प्रैक्टिस और सोर्सेज दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। They are moving hand in hand, which means once you cover a particular chapter or topic, you practice PYQs on that chapter or topic. You practice MCQs with Super Kalam. PYQs और MCQs दोनों साथ में ही practice हो जाएंगे Super Kalam पर, because Super Kalam पर you can even ask MCQs. I'll give you a short example later on. अभी upcoming कुछ मिनट में आपको मैं direct example दिखाती हूँ कि practice कैसे चलती है hand in hand. एंड देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द माइंड मैप्स। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। एंड आई शो यू द माइंड मैप्स एज वेल। सो हियर यू कैन सी दीज आर माई नोट्स whenever I used to study, because polity is very vast and you cannot note down everything from the book itself directly. काफी वास्ट रहती है पॉलिटी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में माइंड मैप्स बनाने बहुत नेसेसरी हो जाते हैं, बिकॉज माइंड मैप्स विल हेल्प यू नेविगेट इवन इन आंसर राइटिंग। आपके पास कीवर्ड्स, की टॉपिक्स लिखे होंगे, तो इवन आंसर राइटिंग में आपको काफी हेल्प होगी टू डू योर एक्टिव रिकॉल, है ना? तो मान लो एक्टिव रिकॉल क्या होता है? व्हेन यू हैव स्टडीड समथिंग, यू क्लोज द बुक एंड देन यू रिकॉल। आप ये चेक करोगे, यू विल बी चेकिंग हाउ मच ऑफ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड यू आर एबल टू जॉट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नॉट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। यू आर नॉट being asked to make heavy notes. Just make flowcharts or mind maps and write the keywords that you are able to recall from the topics that you have just now studied or understood. तो ये एक्टिव रिकॉल आपको हेल्प करेगा मेंस में आंसर स्ट्रक्चर करने में भी। यहाँ पर अब अगर आप देखो चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग बाय द वे। तो एंड एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन ऑन चार्टर एक्ट इन प्रीलिम्स। चार्टर एक्ट पे क्वेश्चन मेंस में भी काफी बार पूछा गया है। So here also what I did, after reading the Charter Act 1853 properly, after understanding it, I closed the book and I jotted down on a piece of paper, half page मैंने लिया और मैंने jot down किया कि मुझे कितना याद है, what did I understand after studying it. I closed the book and then I started writing down. ये है मेरे mind maps। इस तरीके से mind maps बनाए जाते हैं। Students, they have this question, ma'am, how do we make mind maps like you? There is no separate course on making mind maps. Mind maps means what your mind can map. आपने जो पढ़ा, आपने कितना समझा, लिख कर दिखाओ, ये होता है माइंड मैप। आपने जो पढ़ा उसमें से क्या कीवर्ड आप निकाल पाए, वो लिख कर दिखाओ, वो होता है माइंड मैप। What you have studied, how much of it you are able to directly right now recall, ये दिखाता है आपके ब्रेन की अवेयरनेस एंड आपके ब्रेन की क्लैरिटी कि आप कितने डिस्ट्रैक्टेड थे या कितना अटेंशन के साथ आपने चीजें पढ़ी। अगर पढ़ने के बाद बुक बंद करके आप बिल्कुल कुछ भी लिख नहीं पा रहे हो उस टॉपिक के ऊपर, दैट मीन्स अवेयरनेस नहीं थी जब आप पढ़ रहे थे। यू वर नॉट इन द मोमेंट, यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, यू वर जस्ट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ इट। But when after closing the book, you are able to write down 4 to 5 keywords, that means
योर माइंड वॉज रियली एक्टिव वाइल रीडिंग दैट टॉपिक. तो ये प्रैक्टिस होती है. विद प्रैक्टिस यू विल improve a lot, एंड विद प्रैक्टिस योर अटेंशन स्पैन, योर अंडरस्टैंडिंग विल ऑल्सो improve. और ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा. अगर आप बोलो कि मुझे एक दिन में 2 दिन में ये करना आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है. इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 1.5 week to be able to recall all the important keywords from what you have studied. सो मेक श्योर कि आपके पास 1 पेजर माइंड मैप्स हर टॉपिक के बाद बने हो, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू शॉर्टन योर टाइम ऑफ रिवीजन एंड विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल. ओके, तो हमने ये भी समझ लिया. अब मैं आपको बताने वाली हूं कि जब आप एक्टिव रिकॉल कर लेते हो, माइंड मैप्स बना लेते हो, उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव कैसे करना है, हाउ यू नीड टू गो अबाउट द टारगेट. सो फर्स्ट आई टेल यू हाउ वी आर डीलिंग विद, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ डीलिंग विद पॉलिटी राइट नाउ. आप टेलीग्राम पे देखोगे, आपका स्पेसिफिक ग्रुप है टेलीग्राम पे, यहाँ पर आप देखोगे कि वी गिव यू टारगेट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज टारगेट आपको मिला दैट यू हैव टू स्टडी इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी. ओके, ये आपको पढ़ना है. नाउ आफ्टर रीडिंग, लेट्स से प्रेसिडेंट का टॉपिक, यू हैव स्टडीड द टॉपिक ऑन प्रेसिडेंट. आफ्टर रीडिंग इट, क्लोज द बुक एंड राइट डाउन ऑन 1 पेज व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट यू कैन रिकॉल. कीवर्ड्स रिकॉल करने हैं आपको, ठीक है. आप भले ही कीवर्ड जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, यू डोंट हैव टू मेक माइंड मैप्स एज इट इज, यू कैन जस्ट पॉइंट में लिख लो कि दिस मच वी हैव स्टडीड. प्रेसिडेंट में क्या होता है, आर्टिकल्स गवर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, then who makes the oath, then what is the objective, what is the significance of being of this particular position, what are the roles and responsibilities, ठीक है, what are the qualifications to become a president, election process क्या होता है इसके में, इस केस के अंदर, what are the powers given to a president, यही तो keywords होते हैं, है ना. तो आपको keywords को डिवाइड कर लेना है कैटेगरीज में, and then just write down whatever you remember, write it down. Once you are done with that, you have to now do not move to the next topic or next chapter. Start with daily prelims question, DPQs जो दिए हैं आपको, दिन में अपना दिन स्टार्ट करना है DPQs से. सुपर कलाम पे DPQs दिए होते हैं. एंड देन आफ्टर कवरिंग द टारगेट्स, आपको उस टारगेट के बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. नाउ आई विल टेक यू द entire day how you have to spend when it comes to practicing your daily targets and approaching polity. So here you can see that once you go to Super Kalam, how you need to start your day. Early in the morning by 6:30 a.m., you get your daily news analysis. You click on daily news analysis, you get the current affairs, important current affairs and editorials summarized over here. Now, once this is done, what you need to do is, you need to go to this button, attempt quiz. These are your daily prelims questions. अब यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट बिकॉज पॉलिटी इज अ प्रोमिनेंट थीम इन द न्यूज़पेपर. अब टुडे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो यू प्रैक्टिस द डीपीक्यूज. देयर आर 5 डेली प्रीलिम्स क्वेश्चंस, 5 डीपीक्यूज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. Once you are done with this, then you go to Super Kalam, and here after practicing the targets, after covering the targets, making your mind maps, you need to practice questions on it. तो सबसे पहले मैं Super Kalam से after completing the president target, I will study give me PYQs on president. अब यहाँ देखोगे 2014 में क्वेश्चन आया था, आई विल सॉल्व इट ऑन प्रेसिडेंट. देन द क्वेश्चन केम इन 2015 ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेसिडेंट के टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लिए. सो वन स्टेप इज डन. नाउ आई विल आस्क गिव मी 5 MCQs ऑन प्रेसिडेंट टू प्रैक्टिस, एंड देन आई विल प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. 5 के साथ साथ आप चाहो तो 10 प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, इस तरीके से 15-20 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस ऑन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट विल बी हियर एंड यू कैन प्रैक्टिस देम. अपना प्रोग्रेस भी यहाँ देख सकते हो डैशबोर्ड पे कि व्हाट इज योर एक्यूरेसी लेवल व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. इससे क्या होगा, यू विल हैव अ क्लैरिटी कि व्हाट यू हैव स्टडीड आर व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल बेस्ड ऑन योर एक्टिव रिकॉल. आप कितना रिकॉल करके टेस्ट दे पा रहे हो, उस पर आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है, यानी कि आपने कितना समझा जो आपने पढ़ा है ना. तो ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर. दिस इज हाउ योर एंटायर डे व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी शुड लुक लाइक. तो प्रैक्टिस कर लिया, PYQs MCQs प्रैक्टिस कर लिए, 1 पेजर माइंड मैप बना लिए, बट यू कैन नॉट बी लिमिटेड टू M लक्ष्मीकांत. आप सिर्फ ये मत सोचना कि M लक्ष्मीकांत कर लिया, NCRTs कर ली, MCQs प्रैक्टिस कर लिया और हो गया पॉलिटी. पॉलिटी इज वेरी वास्ट, सो यू हैव टू इंटर रिलेट इट विद फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस. वो भी पॉलिटी में आता है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे.
बट यू हैव टू लिंक इट विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो। आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट की काफी केसेस, काफी जजमेंट्स आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा नोट्स, जो कि आपके ऑलरेडी जो आप वन पेजर माइंड मैप बना रहे हो उसी में 2-3 पेज ऐड हुआ करेंगे ऑन अ मंथली बेसिस। जो भी इंपॉर्टेंट policies, acts, for example abhi criminal laws were amended, those can be added. So I advise every student to make notes on loose pages. जब आप loose pages में notes बनाते हो, it is very easy to add notes further. अगर रजिस्टर में बनाओगे, बाइंडिंग वाले रजिस्टर में, तो पेज ऐड करना, वैल्यू एडेड मटेरियल ऐड करना मुश्किल हो जाता है। तो A4 साइज लूज शीट्स में आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो पॉलिटी के, ठीक है। सो दीज विल बी कवर्ड, प्लस आई विल ऑल्सो make you updated on telegram with respect to the important current affairs, supreme court judges, judgments, etc. ठीक है। सो दिस इज हाउ इंडियन पॉलिटी हैज टू बी अप्रोच्ड। ये एक क्लियर फंडा है, टारगेट्स आपको मिले, ठीक है। देन टारगेट्स के साथ साथ डीपीक्यूज मॉर्निंग में प्रैक्टिस किए, उसके बाद टारगेट प्रिपेयर करके एक्टिव रिकॉल चेक किया माइंड मैप्स बनाकर, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज उस टॉपिक पे सॉल्व किए जो आपने टॉपिक पढ़ा है, एंड दैट्स हाउ यू क्लोज योर डे विद पॉलिटी if you are studying polity. Then extra notes की जब बात आती है, तो extra notes are none other than the current affairs. इसके अलावा और कोई रिसोर्स या और कोई चीज आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है मार्केट से। दिस इज इन इटसेल्फ इनफ टू डील विद इंडियन पॉलिटी। तो ये था हमारा सेशन 1 ऑन इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स, एंड देन लेटर ऑन धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स कवर तो कर ही रहे हैं और करना शुरू करेंगे ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंडियन पॉलिटी इज अ वेरी लाइट बट येट वास्ट सब्जेक्ट। अगर आपने इसको स्ट्रक्चर इस 3 पार्ट में कर लिया जैसे मैंने समझाया है, तो विद इन 1 मंथ यू विल सी अ ह्यूज इंक्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू व्हेन इट कम्स टू दिस सब्जेक्ट। प्लस इसको रटना नहीं है, डू नॉट क्रैम इंडियन पॉलिटी, इट इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझो कि आपके देश में गवर्नेंस कैसे चल रहा है, कैसे पॉलिटी ऑपरेट करती है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।